Hello students. So today I am going to start the actual examples on the topic of integration. In the previous video lecture we discussed on the concept of integration and the important formula, the basic formula of integration. So let us recall the definition of integration, the integral, indefinite integral. So name of the topic, that is indefinite integral. Indefinite integral, this is the name of the topic. So definition is what? So d by dx of f of x is equal to g of x. If suppose derivative of f of x is equal to g of x, this g of x is called the derivative of f of x. f of x is a function that is called the antiderivative. अगर ये डेरिवेटिव है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव. एंड द एक्सप्रेशन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स और primitives, that is called as the integration, right? So here then we can integrate g of x dx is equal to f of x plus c. f of x plus c, this is the definition of integration. If we have to give one derivative, if we know the derivative of function and we have to find the function, and the process of finding function when derivative is known, that process is also called as what? Antiderivatives or anti-differentiation or integration. f of x का derivative g of x, g of x का integration f of x plus c. This c is called as the integral constant. This f of x is called as the integral. इसको क्या कहें? Integral, antiderivative or primitive. Primitive, antiderivative, integral. This is integral sign. Integral with respect to x. Integral with respect to x. This is the derivative with respect to x. वैसा integration with respect to x of g of x. And this g of x is called as the derivative. That is called as what? Derivative. Okay. और integrand भी कहते हैं उसे. Now today we will take in the rules of integration. Rules of integration. So जैसे रूल्स लिमिट्स के रूल्स थे, डेरिवेटिव के रूल्स थे, अब इंटीग्रेशन के रूल्स. रूल्स मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव में u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v एंड u बाय v था. Sum of two function, product of two function, difference of two function and quotient of two function. There was the rules. So derivative of first plus derivative of second, derivative of first minus derivative of second, if sum and difference is there. If product is there, then u into derivative of v plus v into derivative of u. If quotient was there, then v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square when v is not equal to 0. So here वैसे यहाँ पर रूल्स हैं इंटीग्रेशन के भी. फर्स्ट रूल इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ f of x plus g of x. If suppose there is a sum of two function with respect to x, for this we can write integral of f of x dx plus integral of g of x dx. उसका हम सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड. वन मोर इज देयर, थर्ड भी रहेगा तो ऐसा सेम प्रोसेस से हम इसको सेपरेट इंटीग्रल कर सकते हैं फॉर सम एंड आल्सो डिफरेंस आल्सो. f of x माइनस g of x. लिमिट में भी रूल्स थे, लिमिट्स के कुछ रूल्स थे. f of x प्लस g of x, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. सो वही रूल्स, वो सेम वैसे रूल्स डिफरेंशिएशन में थे. अब यहाँ पर सम के बाद डिफरेंस है. सो वी राइट इंटीग्रल ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ g of x dx. एंड नंबर थर्ड, अब आप गेस करेंगे कि इसके बाद अब प्लस होगा माइनस होगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा. नो, इंटीग्रेशन के लिए रूल्स फॉर क्वोशंट एंड प्रोडक्ट के रूल्स यहाँ पर नहीं है. उसकी सेपरेट मेथड है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक. बट हियर वी कांट टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज देयर और क्वोशंट इज देयर. अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका हम सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते. इफ क्वोशंट ऑफ two functions, two different function, we can't taking separate integration of that function. हम यहाँ पर वैसे कर नहीं सकते. So sum और product difference के बाद एक coefficient का है k into f of x. K is a constant.
So that time we write k outside the integral. f of x dx plus c. K is a coefficient, constant coefficient, right outside the integral sign. यही रूल डिफरेंशिएशन में था, लिमिट में भी था, और ये इंटीग्रेशन में कैरी है. So these are the three basic rules of integration. So we can find the integration of we can integrate the function with respect to x by using these three rules and that previous formula. So formula में कैसा है, अगर sin का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x plus c. ये बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन है. उसके आगे बहुत सारे फॉर्मूलेज है, लेकिन इस बेसिक फॉर्मूले पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ये थ्री रूल्स. नाउ वी कैन टेक इन द एक्चुअल एग्जांपल्स ऑन इंटीग्रेशन. Now let us see the examples. So this is the first example of the important topic, integration. So exercise 3.1 topic, indefinite integral. This is the first example. Integrate the following with respect to x. ये 5 एग्जाम्पल का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है. इंटीग्रेट करना है मीन्स इंटीग्रल फाइंड करना है. डिफरेंशिएट करना है मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करना है. इंटीग्रेट करना है मीन्स इंटीग्रल फाइंड करना है. सो ये 5 एग्जाम्पल से लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल. So that first example. So let I is equal to x cube plus x square minus x plus 1 dx. Integrate with respect to x. So this I stands for integral. इसको I को क्या कहिए, इंटीग्रल. हर एक एग्जाम्पल को हमें I is equal to लिखना है. जैसे लिमिट में हम L is equal to लिखते थे. L stands for limit of the function. Here I stands for integral of the function. Okay. अभी इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऐसे वर्ड है. इंटीग्रल मीन्स उसका आंसर, उसका इंटीग्रल फाइंड करना है हमें. हम जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं. डेरिवेटिव अपना आंसर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन. इज इट क्लियर? सो कंफ्यूज नहीं होना इसमें. सो अपना पहला फॉर्मूला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू 4/4. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3. एक्स का इंटीग्रेशन पावर 1 है उसकी, एक्स स्क्वायर बाय 2. और 1 का इंटीग्रेशन क्या, एक्स. कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है. एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1. 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1. एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2. इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करो, डेफिनेटली ये मिल जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आंसर राइट प्लस सी. आखिरी में एक बार प्लस से लिखना है. दैट सी इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रल कांस्टेंट. अब ये सी क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक को एक अलग अलग, ये फंक्शन का और एक इसका और एक डेरिवेटिव आ सकता है. सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ दैट वी राइट प्लस सी. एग्जाम्पल नंबर 2. जैसे मैंने कहा था कि sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, cos x. sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है, cos x. sin x प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या है, cos x. सो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x प्लस 3, sin x प्लस 5, sin x प्लस 6, sin x माइनस 3 ऑल्सो. सो इंस्टेड ऑफ दैट प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 3 we write only c. So that c is arbitrary constant we consider here as a constant of integration. Example number 2. I is equal to x square 1 minus x 2 by x whole square dx. इस dx का मीनिंग इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं फाइंड करेंगे, हम इसका a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर dx. राइट, दिस इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस 4 बाय x प्लस 4 बाय x स्क्वायर dx. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, x स्क्वायर एक x कैंसिल माइनस 4x, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइड कैंसिल ओनली प्लस 4 dx. So इसका आंसर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाय 3, 4x स्क्वायर बाय 2. इंटीग्रेशन ऑफ 4 इज व्हाट, 4x. 4x का डेरिवेटिव 4 का इंटीग्रेशन x. कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है. k का इंटीग्रेशन kx.
2 का इंटीग्रेशन 2x। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। सो आपको अगर बेहतरीन इंटीग्रेशन सीखना है तो ये तो मैं एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा। एक हाथ दूसरा एग्जाम्पल जो वेरी मच सिमिलर है वो मैं स्किप करूंगा फॉर योर होमवर्क। बट आपको द बेस्ट करना है तो जो सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में वही सॉल्व करना है। तो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है, नहीं तो टेक्स्ट बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, वो ले लो और सब सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, द बेस्ट बन जाएगा। और पहले वीडियो लेक्चर से करो, अगर 4-5 वीडियो लेक्चर के बाद आप स्टार्ट करोगे तो ये टॉपिक नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, इंटीग्रेट I इज इक्वल टू 3sec² माइनस 4/x प्लस 1/x रूट x माइनस 7 dx। सब एक जैसे एक फंक्शन थे, सब अलजेब्रिक थे। सो मैंने सेपरेट सबका सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे बिकॉज फर्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड थर्ड इज अलजेब्रिक फंक्शन, लास्ट इज कांस्टेंट दैट इज आल्सो अलजेब्रिक। सो हम सेपरेट लेंगे 3, ये 4 कांस्टेंट आउटसाइड लिखेंगे, इंटीग्रेशन sec² dx, ये -4 आया आउटसाइड 1/x dx, x⁻⁴, x⁻², x⁻³ dx, -7 आउटसाइड 1 dx। ठीक है, 3 -4 एंड -7 इंटीग्रल साइन के बाहर लिए हमने बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट। sec² 1/x और लास्ट का 1, x इंटू रूट एक्स है, x इंटू रूट एक्स कितना होता है x⁻1, x⁻½ 1 + ½ 3/2। अब हम और एक स्टेप एक्सटेंड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर एक टर्म मैं ऐसा करता हूँ, देखो 1/x dx प्लस x⁻³ ऊपर लेंगे तो x⁻³ हो जाएगा dx -7 1 dx। अब देखो आंसर, sec² से किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है। सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दैट, tan x का डेरिवेटिव sec² से इंटीग्रेशन tan x, इज इट क्लियर। -4 1/x का इंटीग्रेशन log x, why because derivative of log x is 1/x, integration of 1/x is log x, log x का डेरिवेटिव 1/x है, सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस x⁻³ है। सो ये फॉर्मूला हमारा x⁻n का इंटीग्रेशन का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो x⁻³ + 1 -3/2 + 1, ये -7x प्लस c। सब टर्म का इंटीग्रेशन फाइनल होने के बाद ही हम प्लस c लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर एक इंटीग्रल साइन बाकी है। सो पहले इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले हम प्लस c नहीं लिख सकते। ईच एंड एवरी टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड होने के बाद ही एक ही c लिखना है, हर बार प्लस c ऐसा नहीं करना है। एक बार लिखा तो भी चलेगा, -3/2 + 1 -3/2 + 1, ये तो आंसर हो गया। log x -3/2 + 1 इट इज x⁻⁻1/2, नीचे भी -1/2 प्लस -7x प्लस c, -3 + 2 -1/2, इट इज 3 tan x -4 log x प्लस इंटू माइनस इज -2 अपॉन 1/2 है, नीचे 1/2 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, x⁻⁻½ that becomes 1/√x, so we write directly 2/√x -7x प्लस c। x⁻½ कितना होता है, x⁻² √x होता है,
एक्स रेस टू माइनस हाफ कितना होता है, 1/√x होता है, तो इट इज 1/√x, और 2 तो बाहर है, -2 है, -2/√x, -7x + c. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. इज इट क्लियर? सो पूरी प्रोसेस समझ के लिए लोग कैसा इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना. डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जम्बलिंग नहीं होना चाहिए, और वो मिस्टेक हो गए तो फिर बहुत मिस्टेक आगे इंप्रूव नहीं हो जाएंगे फिर वो. ठीक है, विल टेक मोर एग्जांपल आफ्टर दिस. 3 एग्जांपल तो हुए हमारे, फोर्थ और फिफ्थ. अब फोर्थ हम एग्जांपल आप सॉल्व करो इसको. x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x⁴/4, x का x²/2, 1/x का log x. अभी जो नीचे x⁵ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x⁻5 हो जाएगा, और x⁻5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻5 + 1/-5 + 1. देखो x³ का x⁴/4, x का x²/2, 1/x का log x, और ये जो नीचे की टर्म है ऊपर ले लो, x⁻5 हो जाएंगे, और x⁻5 का इंटीग्रेशन क्या है, x⁻5 + 1/-5 + 1, दैट इज x⁻4/-4. लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 5. अब 5 सॉल्व करेंगे यहाँ पर. I = 3x² - 2x + 5. डिवाइडेड बाय x × √x. अभी जो यहां पर भी x × √x था, सेम यहां पर इसको हम 3/2 करेंगे. x⁻what 3/2. अब सेपरेट डिवाइड करेंगे इसको. 3x² डिवाइडेड बाय x⁻3/2, 2x divided by x⁻3/2, and 5 divided by x⁻3/2. Divide separately by x⁻3/2. अभी ऊपर जाएगा 3x² x⁻3/2 -2x x⁻3/2 plus 5 x⁻3/2 dx. ओके. अब सबका सेपरेट इंटीग्रल लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज सब फंक्शन सेम है, एक ही फॉर्मूले के x⁻n की ही है. सो वी कैन नो नीड टू टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन. ये 2 माइनस सम करो, इसके बेस से में पावर के एडिशन 2 - 3/2, 2 × 2 4, 4 - 3 is 1, x⁻1/2, x⁻1/2 -2 इंटू, यहाँ पर 1 है, 2 - 3, 4 - 3 is 1/2, 2 - 3 is -1/2. यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ पर x⁻3/2 ही है. अब इंटीग्रेशन लेना है सबका. ये 3 तो कोएफिशिएंट है, x⁻½ + 1, ½ + 1 is 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 minus 2 x⁻1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1 plus 5 x⁻3/2 plus 1 divided by -3/2 plus 1 plus, right? वही एक ही फॉर्मूला, पहला ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं x⁻n का. इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज व्हाट, x⁻n + 1/n + 1 + c. देखो अब एडिशन करना है 3/2/3/2. 3 × x⁻3/2 upon 3/2 minus 2, 1 - ½ is half, x⁻1/2 upon 1/2 plus 5 2 - 3 x⁻−1/2 upon -1/2 plus c. ये 3/2 पर 2/3 हो जाएगा. 3 × 2/3 x⁻3/2, 2 × 2 x⁻½ means √x plus into minus is minus, 5 × 2
एक्स रेस टू माइनस हाफ इज 1/√x प्लस सी, ये उसका आंसर। यहाँ पर 3 3 कैंसल, ये 2, ये 4 और ये 10, दैट इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5। बाकी सब कैलकुलेशन है, केयरफुली करो, डेफिनेटली आंसर आएगा। ये सब फॉर्मूला नंबर 1 के एग्जाम्पल है, एक्स रेस टू n के एग्जाम्पल थे ये। ओके, वी विल टेक सेकंड एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.1। Now let us see the second example from the same exercise. Total 8 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस फॉर्मूले, जो पहले फॉर्मूले लिए उस पर डिपेंड है। सो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan square x। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक ऐसी हो सकती है, जैसे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, हम क्या करते थे, देखो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है tan square x का। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 tan x, द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज व्हाट, sec square x। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। लेकिन ये प्रोसेस इंटीग्रेशन में नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते tan raised to 3/3, ऐसा करना टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सो वी कैन राइट tan raised to 3/3 और उसके बाद tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ऐसे प्रोसेस इस पे नहीं है। सो इट इज tan square x। सो इसको क्या करेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, दिस नॉट इंटीग्रेबल, वी राइट sec square x minus 1, tan square x means what, sec square x minus 1, because of what, 1 plus tan square x is equal to sec square x। सो नाउ sec square x किसका डेरिवेटिव है, tan x का है, 1 किसका डेरिवेटिव x का है, सो दैट इज आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस c, ये उसका आंसर। सेकंड एग्जांपल, ए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन बोलो इंटीग्रल बोलो डजंट मीन टू बी सेम, सेम ही है। इसको इंटीग्रल बोलो नहीं तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो, ये सेम ही है। ऊपर sin 2x है, सो ऐसा डिवीजन का क्वेश्चन का कोई भी रूल नहीं इंटीग्रेशन में। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय व्हाट, cos x। ये cos x कैंसिल, ये 2 आउटसाइड ले लो, बाचे क्या रह गया वहां पर, sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, वो sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, माइनस cos x प्लस c। इज इट क्लियर, दैट इज आंसर ऑफ सेकंड। नाउ नंबर थर्ड, आप सिर्फ ध्यान देना यहाँ पर, बाकी बाद में आप इसको कॉपी कर सकते। प्रोसेस कैसे होती है इंटीग्रेशन की वो देखना है। मैंने tan स्क्वायर को ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं हो सकता डायरेक्टली। इसको मैंने sec square x minus 1 किया, इट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब ट्रिगोनोमेट्री जितना भी आपको आता है उतना बेहतरीन है। ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फॉर्मूले, दैट इज मल्टीपल, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, आलाइड एंगल फॉर्मूले, सो दैट इज नेगेटिव एंगल, सब ये सब चीज आना चाहिए आपको। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन, ये सब चीज आना चाहिए। नंबर थर्ड देखो क्या है, sin x अपॉन क्या है, cos square x। I इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय क्या है, cos square x। अब इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, sin x अपॉन cos x एंड 1 बाय व्हाट, cos x। sin x अपॉन cos x इज tan x, 1 बाय cos x इज sec x। सो वी राइट प्रॉपरली sec x इंटू tan x। डेरिवेटिव में हम रैंडमली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव पे दिया फंक्शन को उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट फॉर्मूले। लेकिन इंटीग्रेशन में यू शुड अप्लाई द लॉजिक, यहाँ पर रैंडमली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। दिखा एग्जांपल डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, हमारा जजमेंट आना चाहिए, तभी इसका आंसर बन जाएंगे। sin x बाय cos स्क्वायर x है, सो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर को स्प्लिट किया, sin बाय cos tan 1 बाय cos sec। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ये किसका डेरिवेटिव है, sec x का डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x इंटू tan x। दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज sec x प्लस c।
ये बन गया नंबर थर्ड। अब फोर्थ एग्जाम्पल, व्हाट इज फोर्थ एग्जाम्पल? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। आंसर इज नॉट यूनिक, इंटीग्रल का ये आंसर इसका यूनिक आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर, इसको हम बहुत सारे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको बहुत आगे जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तब आंसर अलग आ जाएगा। हमने ये मेथड से सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। मेथड चेंज की, कंसेप्ट चेंज किया, एप्लीकेशन चेंज की, फॉर्मूला चेंज किया, तो आंसर डिफरेंट आता है। सो आंसर इज नेवर यूनिक, इंटीग्रेशन नेवर यूनिक, यूनिक कभी नहीं होता। अब ये एग्जाम्पल है, मैं तुमको इसका दो तीन तो आंसर लाके देता हूं। देखो पहला, cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन स्क्वायर x। इसका हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, cot स्क्वायर x, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1। जैसे tan स्क्वायर x इज नॉट इंटीग्रेबल, वैसे cot स्क्वायर x आल्सो नॉट इंटीग्रेबल। cot स्क्वायर x भी इंटीग्रेबल नहीं है। तो हम इसका इंटीग्रेट कैसे करें? इसको जैसे हमने कन्वर्ट किया वैसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे। cot स्क्वायर x मीन्स cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस 1 वहां पर था, वो भी है, सो इट बिकम्स cosec स्क्वायर x माइनस 2 dx। अब एक cosec स्क्वायर x माइनस 2 है। cosec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? माइनस cot x का। cot x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस cot x, माइनस 2 का माइनस 2x प्लस ये उसका आंसर। सो ये जो आंसर आया, इसको हम अगर मेथड चेंज की तो इसका और दूसरा आंसर आ जाएगा। सो देखो मैं इसको अब देखो दूसरे मेथड सॉल्व कर सकते हैं। सेम एग्जांपल i इज इक्वल टू, ये देखो यहां पर अगर मैंने cos 2x का फॉर्मूला ऐसा अप्लाई किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, नहीं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 2 cot स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। cos 2x के चार फॉर्मूले, एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो यहां पर मैंने cos 2x का ये फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब मैं इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं, ये 2 cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर cot स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। अब देखो इसको जैसे हमने यहाँ पर cot स्क्वायर कन्वर्ट किया वैसा आप यहाँ पर कन्वर्ट करो cosec स्क्वायर x का, तो डायरेक्ट फार्मूला माइनस cot x, वो मेथड से आप करो, डेफिनेटली विल गेट द आंसर। थोड़ा स्लाइटली चेंज आ जाएगा। सो ये उसका आंसर है। ये भी यहाँ तक 4 तक एग्जाम्पल हुए। अब 5, 6, 7, 8 हम इमीडिएटली लेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 5 नाउ। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने एग्जाम्पल हमारे बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्ट है तो मैं पूरे एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर। ये नंबर 5 एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अभी cos 2x का अभी जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वही फॉर्मूला अप्लाई करो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ये, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। सेपरेट डिवाइड करो, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये देखो मैंने सेपरेट डिवाइड किया, साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x कैंसिल, ये साइन स्क्वायर x कैंसिल, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x।
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अभी जो कोसेक स्क्वायर एक्स है किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव है। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? टैन एक्स का। यही तो प्रोसेस इंटीग्रेशन की। डेरिवेटिव नोन है, उसका फंक्शन फाइंड करना है। ये किसका डेरिवेटिव है? टैन एक्स का है। ये किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट एक्स का। सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज गिवन। इज इट क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 6 यहां पर ये होगा 5 6 नंबर क्या है? 6 देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। सो आई इज इक्वल टू एग्जाम्पल। सो यहां पर मैं रैशनलाइज करता हूं 1 प्लस साइन एक्स। रैशनलाइजेशन मीन्स व्हाट? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। मिडल साइन प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। So this is sin x into 1 sin x, sin x into sin x sin square x, 1 plus sin x 1 minus sin x, 1 plus sin x 1 minus sin x is 1 minus sin square x, 1 minus sin square x is cos square x. What is this? Cos square x dx. फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री है, सिर्फ उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं। सेपरेट डिवाइड करेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी इसको मैंने सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिखा था, अभी आज ही लिखा था मैंने सेक एक्स इंटू टैन एक्स। हाउ टू राइट इट? सेक एक्स इंटू टैन एक्स, बिकॉज इसको स्प्लिट करो कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाय कॉस टैन 1 बाय कॉस सेक, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब देखो टैन स्क्वायर एक्स ये इंटीग्रेबल है, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है बिकॉज ये डेरिवेटिव है किसी का तो फंक्शन का, लेकिन ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। सो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। टैन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख, जैसे हमने आज 2 बार लिखा है उसको। ये देखो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन स्क्वायर एक्स मीन्स व्हाट? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस 1। सिर्फ प्रोसेस को ध्यान दे दो, मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर रैशनलाइज किया, हर एक एग्जाम्पल अलग सोच से सॉल्व करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन रैंडमली है, पहले दूसरा तीसरा चौथा सब एग्जाम्पल एक जैसे है। पैरामेट्रिक फंक्शन पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हर एक जैसे सेम 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 एग्जाम्पल रहते हैं। थोड़े टफ, थोड़ा चेंजेस होती है, लेकिन टफ थोड़ा लेवल बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इस एग्जाम्पल का इस एग्जाम्पल से कोई रिलेशन नहीं है। हर एक एग्जाम्पल नए सोच से नई लॉजिक से सॉल्व करना पड़ता है। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? सेक एक्स का डेरिवेटिव है। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? टैन एक्स का है। ये एक्स का है प्लस। सो ये इंटीग्रेशन है, नॉट अ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आया तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मैथमेटिक्स आ गया। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैथमेटिक्स का। ये 6 एग्जाम्पल होगा। अभी देखो 7th एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व करता हूं मैं, वेट। ये अब एग्जाम्पल नंबर 7। Example number what? 7. That is tan x divided by sec x plus tan x. अब ये एग्जाम्पल का और ये एग्जाम्पल कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन एक ही है, यहाँ पर इंटीग्रल साइन है, यहाँ पर इंटीग्रल साइन है। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का एक ही रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट अप्लाई की थी ये यहाँ पर हो सकती है अप्लाई। यहाँ पर सेक एक्स प्लस टैन एक्स है तो ही रैशनलाइज करेंगे, सेक एक्स माइनस टैन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों करना है? क्यों करना है? इसका एक ही आंसर है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। रैशनलाइज अगर नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसका। तो ये तो हम लर्न करके तो नहीं जा सकते एग्जाम में।
सो ये sec x plus tan x, sec x minus tan x, that becomes sec square x minus tan square x, and sec square x minus tan square x कितना होता है? 1 होता है. That's why we apply here rationalization. Numerator tan x into sec x into tan x, tan into tan square x, divided by sec square x minus tan square x dx. अब ये तो लास्ट एग्जाम्पल सेम बन गए. देखो सेम ही एग्जाम्पल है. sec x into tan x, tan square x में sec square x minus 1, sec square x minus 1 divided by how much? 1. sec square x minus tan square x is fundamental identity, that is what? 1. अब देखो क्या करना है. sec x into tan x minus sec square x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 dx, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. अब देखो ये सेम एग्जांपल, ये जो लास्ट दो स्टेप तो इसके सेम ही है. sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. जब तक पूरा इंटीग्रेशन, सब पूरे स्टेप के सब इंटीग्रल साइन जब तक नहीं जाते तब तक ये c प्लस c नहीं लिखना. sec x का ये डेरिवेटिव है, tan x का ये डेरिवेटिव है, x का ये डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव कितना होता है? 0. सो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x. इज इट क्लियर? सो दिस एग्जांपल नंबर 7. अब 8, 9, 10 तीन एग्जांपल बाकी हैं. लास्ट नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स 8, 9 एंड 10. देखो यहाँ पर 8 एग्जांपल कैसा है. 1 प्लस साइन 2x है, इसका एक फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x का, दैट इज cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर. ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री तो बेस है मैथमेटिक्स का हार्ट है वो. अगर ट्रिगोनोमेट्री आ गई तो मीन्स वो सब टॉपिक में आपको लगना वाला है. सो यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला विच इज व्हाट? cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल. What is only cos x plus sin x. cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन. सो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x. sin x का डेरिवेटिव cos x. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. ये उसका आंसर. इज इट क्लियर? सिर्फ यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है. दूसरा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x. ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है. 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x. ये रूट 2 आउटसाइड, कोएफिशिएंट कांस्टेंट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल, ओनली साइन x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x? माइनस cos x. ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x. अब ये साइन 4x इंटू cos 3x, यहाँ पर तो प्रोडक्ट है, सो हम इसका सेपरेट इंटीग्रेशन, इसका सेपरेट ले सकते हैं क्या? नहीं. द रूल्स आर ओनली फॉर एडिशन, मीन्स सम एंड द डिफरेंस, नॉट फॉर द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट. यहाँ पर तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड cos. प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड cos का एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज द डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. डिफैक्टराइजेशन मींस व्हाट? दैट कन्वर्ट इनटू सम एंड डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. sin 4x into cos 3x. And this is 2 sin a into cos b. यहाँ पर फॉर्मूला में लिख के लेता हूँ, 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. sin a plus b minus sin a minus b फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया. हर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, जो भी थोड़ा अननोन है, वेरी मच अननोन है, बहुत कम रेयर ऑफ रेयर डिफैक्टरेशन अप्लाई होते हैं, लेकिन ये तो डिफरेंशिएशन में, लिमिट में डेली अप्लाई होते थे. सो दिस 1/2 एज इट इज 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b sin a plus b sin 4x plus 3x minus sin a minus b 4x minus 3x.
dx. This is what 1/2 sin 7x sin x dx. साइन का अब देखो ये फॉर्मूला है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय प्लस सी. सेम वहां पर क्या है 1/2 इन ब्रैकेट साइन 7x का माइनस कॉस 7x बाय 7. वाई बाय 7 बिकॉज x का कोएफिशिएंट कितना है 7 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है a है, दैट्स व्हाई राइट इन द डिनोमिनेटर. सो राइट इन द डिनोमिनेटर 7, दैट इज cos 7x बाय 7. साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस cos x. राइट आफ्टर दिस प्लस c. इंटीग्रल खत्म होने के बाद प्लस सी लिखना है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1. पूरे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, स्टार्टिंग है. सो और एक पॉइंट बाकी है 3.1 का, वो नेक्स्ट पीरियड में मैं लूंगा. ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. विल स्टॉप हियर एंड वन मोर. जितना मैंने एग्जाम्पल लिया वो सब मेरे साथ ही फॉलो करो. मैं जितना आज पढ़ा है उतना आप सॉल्व करो, और इस पर जितने सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में वो सब आपको कॉपी करना है नोटबुक में. हर एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक एग्जाम्पल लिख के लेना है नोटबुक में. और जैसा मेरा जितना हुआ है उतना ही आपका होना चाहिए, नहीं तो 5-5 6-6 वीडियो लेक्चर पेंडिंग के बाद उसको देखना फिर करना, इंटीग्रेशन नहीं होगा. और इतना याद रखो, अगर इंटीग्रेशन हाथ से चला गया तो मैथमेटिक्स हाथ से डेफिनेटली चला जाएगा. ये ध्यान में रखो और इंटीग्रेशन सॉल्व करो. ओके, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.